ठीक। Good morning, students. Today, we will discuss our last topic of this chapter. This is the types of soil. In previous class, we already discussed about that, why this soil is very important and how this soil is formed. So its importance is very, we can say that everybody knows that this soil is used for multi-purposes. We can say all types of life is sustained because due to soil. And what is the most important thing in this soil formation? सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल में ऐसा क्या है जो इसको फर्टाइल बनाता है. तो ऑल दीज टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस. Soil is also considered as a resource, as you know everybody, because we are using soil for multi-purposes. This soil is for constructing buildings, houses, for plantation, for growing plantation also, or even also just gives the land fertilities. Land is also there because of this. And one more another important thing is that the soil जो है वो उसका काइंड कैसा है, तो वो इट डिपेंड्स ऑन लैंडफॉर्म. So in this way we see that soil is very important resource. Now we will see how this soil, what if we give the very simple definition about the soil. Soil क्या है, हम soil को अगर define करें तो soil क्या है? Soil that is the uppermost layer of the earth's crust, which is loose, broken and useful for plants. You can write your own in your own languages also. In previous class I told you some like the granary substances that is found on the earth's layer. This is also known as a soil. And everybody you know that soil profile is there. So soil is where the first of all the parent rock, that some like type of subparent that is like weathered rocks are there, then subsoil and humus is there. Soil consists of mineral matter. Now, the soil fertility is depends the on the presence of humus, bacteria, and earthworm. कि soil कितना fertile है, कितना नहीं है, ये कौन से factors define इसको decide करते हैं? Humus, bacteria, and earthworm. So types of soils are there. In this, we will discuss about the types of soil. कि कौन कौन सी सॉइल इंडिया में है और कहाँ है और इन सॉइल के फीचर्स क्या हैं. सॉइल किससे होती है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था. इट इज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग. सो व्हाट इज अ वेदरिंग हियर? वेदरिंग मींस द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. अब ये रॉक्स कैसे टूटते हैं? थ्रू द नेचुरल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट एंड टेम्परेचर. तो इन दोनों की वजह से जो रॉक्स आपको पता है ओपन स्काई में रहते हैं, तो ये रॉक्स के ऊपर कभी तो तेज गर्मी है, कभी ज्यादा बारिश है, उस वजह से उसमें जो क्रैक्स आते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, रॉक्स को टूटना स्टार्ट हो जाता है. और वो जो लूज पार्टिकल्स होते हैं आफ्टर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड इट फॉर्म द सॉइल. If this layer remains undisturbed for a long period of time and some chemical, physical and organic also changes take place, these changes led to the formation of soil. So in this way we come to know that how this soil is formed. Some factors also influence soil formation and process. What are these factors? This is the climate. I told you that climate decides the rate of weathering. Climate means the high temperature is there. What type of climate is the hot and dry or moderate? Some all types of climates are there. It decides the rate of weathering and type of vegetation also. Like I also give you the examples of Rajasthan, mountain region, plains are there. So different types of soil are different. Vegetation is also found in these areas. जहाँ पर आप नॉर्थ में देखते हैं माउंटेनस सॉइल है, वहीं हम लोग वेस्ट में क्या देखते हैं? डेजर्ट सॉइल है. प्लेन्स में क्या देखते हैं? एलुवियल सॉइल है. ठीक है, जहाँ तेज बारिश है, तेज गर्मी है, वहां पर हाई रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है, वहां पर लेटराइट सॉइल है. So all these types of soils are
found where the especially we can say that because of the climatic condition. Next is topography. Topography also decide, we can say that type of topography. You know that in India, types of topography is found in India, like desert is there, mountains, plains, plateaus. So in this way, we find that different types of soil, they are accumulated. They are just, we can get all types of soils in these areas because of the topography differences. Next is nature of parent rock. I told you about the nature of parent rock. What is the parent rock here? Parent rock, where from where we can get the these types of rock. These types of rock we can get from the like the rock which is contained of minerals. तो वो पेरेंट रॉक जो होता है, जो इसका हम कहते हैं ना सॉइल का सबसे ज्यादा जो नीचे का जो सबसे पहले जो यूं कह सकते हैं कि उसका जो बेस होता है वो पेरेंट रॉक होता है. तो वो पेरेंट रॉक डिसाइड्स करते हैं कि उसका टेक्सचर कैसे होगा, उसका सॉइल का कलर कैसा होगा, उसकी फर्टिलिटी कैसे होगी, ह्यूमस कैसे होगा. So all this is decided by the parent rock. And the last is vegetation also decides the amount of humus available in the soil. Vegetation means कि कितना वेजिटेशन है, यानी है ज्यादा वेजिटेशन है वहां पर तो वो क्या होगा, ह्यूमस भी ज्यादा होगा, और ह्यूमस ज्यादा होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी भी ज्यादा होगी. जबकि हमने इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि डेजर्ट एरिया के अंदर क्या है, वेजिटेशन कम है. तो वेजिटेशन कम है तो वहां पर क्या है, सॉइल के अंदर ह्यूमस भी कम है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, लेस फर्टाइल एरिया है. दैट्स व्हाई you see there thorny type of vegetation is found there. So these are also factors that determine the type of a soil. Next is, we can say that types of soil are there. So in this chapter we will read about 6 types of soil, that is alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, and mountain soil. So first of all, we have to just understand the basic idea about these soils. Why types of soils are found in India? Why these are found in different areas, especially. So first of all, the things are that depends on the climate and the process of formation, topography also. So already we discussed about the factors that determine the types of soil. कि soil कैसे बने हैं, soil के factors कौन से हैं जिससे बने हैं. तो सबसे पहले हम alluvial soil की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो एलुवियल सॉइल में देखिए आप, ये सॉइल कैसी होती है, बहुत चिकनी सी दिख रही है. इसमें पानी डलने के बाद ये ऐसी एकदम बिल्कुल चिकनी सी हो जाती है. जब ये सॉइल क्या है, इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. और ये सॉइल जो है, अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया बता देती हूँ उसका. ये सॉइल जो है स्पेशली प्लेन्स में आपको मिलेगी. अब आपको कल एक काम करना है कि सब बच्चे एक पॉलिटिकल मैप लेके बैठेंगे. मेरा मन था कि आज ही आपसे शेयर करती, उसको बोर्ड पे बताती, ये सारी सॉइल उसमें बता देती. तो आपको क्या है कि सारा एरिया मार्क करना आ जाता. अब मैप को समझने का तरीका यही है कि आप साथ में एक मैप लेकर बैठे. जैसे जैसे मैं बोर्ड पे उस मैप को कराऊंगी तो आप साथ साथ में उसको करते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा. तो ये है एलुवियल सॉइल, जिसको देखने से पता चल रहा है कि इसके कैसा टाइप है. तो इसमें ह्यूमस खूब है, ये फर्टाइल है, और इसके अब हम फीचर्स पढ़ लेते हैं. एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल. देखो इसका फर्टाइल होने का रीजन क्या है. इसका फर्टाइल होने का रीजन है कि ये जो एलुवियल सॉइल है ये बनती कैसे है. तो आपको मालूम है कि जो माउंटेनस जो एरिया है जो कि नॉर्थ में है, वो नॉर्थ क्या है, इट इज द ओरिजिनेशन ऑफ डिफरेंट रिवर्स. जब ये रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती है, सिल्ट है ना, क्ले है. अब आपको पता है कि जो भारी चीजें होती है वो पानी अपने साथ, बहुत तेज अगर पानी की स्पीड होती है तब तो वो उसके साथ फ्लो जो है चली जाते हैं, उसके साथ ही जो है बह जाता है, ड्रेन हो जाता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं. तो धीरे धीरे ऐसा ही हुआ कि जो शिवालिक फुटहिल्स है ना. अब आपको क्या है कि ज्योग्राफी को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आपको मैप आने चाहिए. मैप आने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक मैप आना चाहिए कि क्या है, उसके बाद ही आपको चीजें. अब मैंने कहा शिवालिक फुटहिल्स कहाँ है, तो शिवालिक फुटहिल्स में भी 3 रेंजेस हैं बच्चों हिमालय की, जिसके अंदर हमारी है हिमाद्री, फिर हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर लेसर हिमालय होता है, और तीसरे नंबर पे शिवालिक होती है. शिवालिक के जस्ट नीचे प्लेन से स्टार्ट होता है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है, पंजाब से स्टार्ट होता है. पंजाब, यूपी का एरिया, बिहार का एरिया, मध्य प्रदेश का ऊपर का एरिया, फिर इधर हम राइट साइड में थोड़ा सा बंगाल और असम, ये सारा प्लेन्स होता है. इन एरिया के अंदर जो सॉइल है वो कौन सी है, एलुवियल. तो आप देख लीजिए, alluvial soil is the most fertile and widespread formed due to the deposition of fine silt
कॉल्ड एलुवियम बाय द रिवर। सिल्ट कौन लेके आ रही है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स ला रही हैं। इट इज फाउंड इन नर्दर्न प्लेन्स। नर्दर्न प्लेन्स मैंने अभी आपको बताया, गुजरात प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। गुजरात प्लेन्स में भी आपको मिलेगा। गुजरात प्लेन्स, क्योंकि आपको पता है गुजरात के अंदर क्या फीचर्स हैं, इसमें डेजर्ट भी आपको मिलेगा, प्लेन्स में मिलेंगे, कोस्टल एरिया भी है। ये कोस्टल एरिया अपना जो ईस्टर्न कोस्टल है, देखो बच्चों ईस्टर्न कोस्टल में है ये प्लेन, वेस्टर्न में नहीं है। तो कोस्टल एरिया भी कौन सा है? ईस्टर्न कोस्टल। इट कंसिस्ट ऑफ, अब एलुवियल सॉइल किससे कंसिस्ट है? इट इज कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले which is brought by these rivers. Then I told you about the types of alluvial is also type of two type, khadar and bangar. It is you already read in your class 9. Khadar and bangar. Khadar is a new alluvial soil. देखो न्यू एलुवियल सॉइल और बांगर जो सॉइल है दोनों में फर्क क्या है? खादर इज अ न्यू, बांगर इज अ ओल्ड। खादर सॉइल का फायदा क्या होता है? न्यू क्यों है? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जब भी अभी देखो मानसून आएगा ना, तो क्या होगा? फ्लड्स आते हैं, आपको पता है ना? फ्लड्स कहाँ आते हैं? जैसे बिहार में, यूपी में, बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। तो उससे क्या है कि पानी जो ऊपर नीचे, जिसको हम कहते हैं ना कि साइक्लिंग हो जाता है वाटर का। वाटर का जब साइक्लिंग होता है तो उसकी अंदर जो मिट्टी है उसके साथ जो है, तो उससे क्या होता है, ये बार बार क्या रिन्यूड होती है। लेकिन बांगर जो सॉइल है इसके अंदर ऐसा नहीं होता, और इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं मोटे मोटे कंकर से होते हैं, स्मूथ नहीं होती है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर क्रॉपिंग, कि सारी तरह की इसमें फसल नहीं उगती। जबकि खादर क्या, इट इज द वेरी फर्टाइल, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ यू कैन सी दैट क्रॉप्स आर ग्रोन। तो ये डिफरेंस है। ये अब सबसे बड़ी बात है कि खादर कहाँ मिलता है। खादर आपको मालूम है जी कि जो प्लेन्स होता है ना, प्लेन्स के भी स्लोप पर नीचे जब आ जाते हैं ना, फुटिल्स पर, वहां पर आपको खादर मिलेगी। और बांगर क्या है? प्लेन्स के अगर हम देखें स्लोप है, तो स्लोप का जो ऊपर वाला एरिया है वहां पर आपको बांगर मिलेगी। दिस इज द डिफरेंस। तो आपके कुछ प्लेन्स का नाम भी दे रखा है उसमें, वो प्लेन्स है जहां पर आपको ये सॉइल मिलेगी। इट कंटेन्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटाश। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका कॉम्पोजिशन लिखना नेसेसरी है। जब आपके पास सॉइल का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ऐसे पॉइंट्स में इसका आंसर लिखना है। और पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखने में आपको 4 पॉइंट आपको मैंने पहले ही बता दिए थे कि एक तो उसका कॉम्पोजिशन बताना है, एक उसका एरिया बताना है, एक उसकी क्रॉप बतानी है, और मतलब और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, प्लस जो है इसके अंदर ये बताना है कि कौन से स्टेट्स के अंदर है। तो यू कैन सी दैट इट कंटेन्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। सो इट इज फर्टाइल एंड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ। अब कौन सी क्रॉप्स है यहाँ पर? शुगर केन, राइस, व्हीट एंड पल्सेस। इसलिए अगर हम कहते हैं ना कि इंडिया का जो एकदम हम कहते हैं बीच बॉल जो है वो कौन सा है? वो प्लेन्स है ना, जहां पर ये सॉइल में सब इस तरह की शुगर केन, राइस, व्हीट, और वैसे हम देखा जाए तो ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, क्योंकि फर्टाइल है तो सभी तरह की क्रॉप्स का ग्रोन हो जाएगा। सेकेंड हमारी डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर ये दे रखा है। बांगर इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल। और खादर क्या है? फ्लड प्लेन्स बोला है, देखो प्लेन्स में है, फाउंड बाय यंगर एलुवियम आर कॉल्ड खादर। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स के ऊपर है। दे रिजेंबल टेरेसेस। The soil in this region is renewed every year and is highly fertile. And the third point, the soil of this region is locally known as कंकर, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि इसके अंदर क्या होते हैं, कंकर, छोटे छोटे कंकर से होते हैं। And is composed of calcareous deposit. Calcareous it is the calcium deposits. और थर्ड हम अगर इसमें देखें, खादर में देखें तो क्या है? This region is very suitable for intensive agricultural activities. Intensive agricultural activities means in this we can use the कि आप जो है मशीन्स वगैरह को यूज करके इन एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? क्रॉप्स को उगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक कलर दिख रहा है आपको ब्लैक सॉइल का। अब आप लोगों ने जनरली आपको सबको आइडिया होगा कि ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता होगा। तो ब्लैक सॉइल वही है जहां पर सबसे पहले हमने क्या देखा था कि किसी भी सॉइल के फैक्टर्स क्या है, फॉर्मेशन के फैक्टर्स। तो इसमें क्लाइमेटिक देखा था हमने, है ना, टोपोग्राफी देखी थी, ठीक है, टेम्परेचर देखा था। तो ये जो सॉइल है स्पेशली डेक्कन एरिया में, आपको मालूम है डेक्कन एरिया किससे बना है? डेक्कन एरिया, दिस इज कॉल्ड द डेक्कन ट्रैप, जो कि स्पेशली किसको ट्रैप करके बना है? इट इज स्पेशली फॉर द इरप्शन, वोल्केनो इरप्शन। वो जो लावा है, उस लावा से जो फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज, आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया के मैप में, अगर मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगी
कि जो साउदर्न पार्ट है वो क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड, जो कि सबसे ओल्डेस्ट लैंड है हमारा, और वहीं पर ये ब्लैक सॉइल है। और सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल जो आपको मिलेगी वो है महाराष्ट्र में, गुजरात में, है ना, ये सारे एरियाज में आपको मिलेगा। अब ये ब्लैक सॉइल किस के लिए यूजफुल है, कॉटन के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें। देखो सबसे बड़ी बात है, इसका दूसरा नाम क्या है, कई बार ना ब्लैक सॉइल की जगह रेगर सॉइल पूछ लेते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, तो रेगर सॉइल। और व्हाट डू यू नो अबाउट रेगर सॉइल, तो भी आपको पता होना चाहिए ब्लैक सॉइल है। रेगर मीन्स का मतलब ही कॉटन होता है, इसलिए रेगर सॉइल भी कहते हैं इसको। इट इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल। आई टोल्ड यू व्हाई ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन डेक्कन एरिया। हाई, इसमें क्वालिटी क्या है कि अगर इसमें पानी डालते हैं ना तो ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, बहुत देर तक इसमें मॉइस्चर रहता है। सॉइल इज स्टिकी, अगर इसमें पानी डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम स्टिकी हो जाएगी। और जैसे ही अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये सॉइल श्रिंक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि सॉइल गीली है, जब वो ड्राई होती है तो उसमें फ्लोइंग जैसे लाइंस बन जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, सेल्फ फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल। अपने आप को सेल्फ फ्लोइंग फीचर्स दिखेंगे उसमें, एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। इसमें क्रैक्स से बन जाते हैं जब ये ड्राई होती है। इसमें होता क्या है, कॉम्पोजिशन रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। और कमी क्या है इसके अंदर, डेफिशिएंट। देखो बच्चों, हमें क्या है, क्योंकि हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो कॉम्पोजिशन आया है, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, अगर हम इसकी फीचर जानने लगे, आयरन का क्या यूज है, लाइम का इस सॉइल में क्या है, it is not necessary here, but you should have idea about the user and features of these. So you also read in your science also, तो have everybody you have the idea। हम यहाँ पर सिर्फ यही चीजें समझेंगे कि इसमें क्या होता है, लिखना आपको यही है, क्योंकि रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। और कमी क्या होती है इस चीज में, नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की होती है, ऑर्गेनिक मैटर की होती है। कलर कैसा होता है बच्चों, डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक। इट इज मेनली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप ऑफ रीजन लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। अगर नाम आ जाए ना, राइट टू स्टेट्स ऑफ वेयर द कॉटन क्रॉप इज ग्रोन, तो महाराष्ट्र, गुजरात आप लिखना, ठीक है। जो हम ध्यान रखना, जो सीक्वेंस के अंदर आता है, जो फर्स्ट पे जो होता है रैंकिंग, उसकी फर्स्ट लिखा होता है, फिर सेकंड होता है, उस तरह से होता है। तो दिस इज द ब्लैक सॉइल। देन रेड सॉइल, कलर देखो रेड सॉइल का, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा रेड सॉइल को। तो रेड सॉइल जो है वो किन एरियाज में होती है, रेड क्यों होती है, तो इसका, इसमें जो आयरन जो होता है उसकी वजह से ये रेड कलर दिखाई देता है ना। और दूसरी चीज है कि यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर फीचर्स क्या होते हैं, तो जहां पर लेस रेनफॉल एरिया, यूं कह सकते हैं सीन इन मेनली लो रेनफॉल एरिया, वहां पर होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पोरस, सेकंड देखिए, पोरस वेरिएबल स्ट्रक्चर, इसको समझेंगे। देखो सॉइल जो होता है ना, सॉइल के अंदर क्या होता है, फीचर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। सॉइल की जो, अगर हम इसको बहुत डीप समझे ना, तो सॉइल की जो यूं कहते हैं कि फॉर्मेशन जो होती है वो अलग अलग तरह से होती है। अब कई सॉइल के अंदर क्या होते हैं कि जो पोरस का मतलब समझ ही होंगे, पोर्स, यानी उसके जो यूं कहा जाए छिद्र जो होते हैं, मतलब उसमें जो पोर्स स्पेस होता है, उस स्पेस से क्या होता है, एयर का आना जाना, वाटर का रिटेनिंग होना, ठीक है, इससे ये फायदा मिलता है। और फेरिएबल स्ट्रक्चर क्या है, फेरिएबल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये जो प्लांट का जो रूट होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के अंदर फायदा देता है। तो ये इसका एक फीचर है। इसमें कमी क्या है, इट इज एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फोरेट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटाश, ये कमी होती है इसमें। कलर जो है रेड कलर ड्यू टू, ये लिखना होगा कलर क्यों है, तो आपको बताना होगा कि कलर है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनमें डिफ्यूज होने, आयरन का डिफ्यूज हो जाता है इन रॉक्स के अंदर, उनमें मिल जाता है ये आयरन, इसके अंदर डिफ्यूज होने की वजह से जो रॉक्स से ये सॉइल बनती है उसका कलर क्या होता है, रेड। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो और येलोइश। टेक्सचर क्या होता है इसका, सैंडी टू क्ले एंड लूमी। सैंडी भी होता है, फिर इसको सैंडी टू क्ले सॉइल क्या होता है, लूमी क्या होता है, अगर पानी डालते हैं तो थोड़ी सी चिकना सा हो जाता है इसका टेक्सचर। इसमें ग्रो क्या करता है, बीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो, दीज आर।
और स्पेशली मिलता कहाँ है? अब आप सोचेंगे तमिलनाडु में तो मैम बहुत बारिश होती है, कर्नाटका में होती है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, झारखंड, इन सब में बारिश होती है, फिर भी हमने ऊपर क्या पढ़ा? मेनली इन लो फॉल रेनफॉल एरिया। बिकॉज आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो एरियाज है इनका इंटीरियर पार्ट ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं ना राजस्थान के ईस्ट में तो बहुत बारिश होती है, वेस्ट में नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होती कि पूरे राजस्थान में बारिश नहीं होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन उनकी स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ये इंटीरियर में यहाँ पर कम बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पर ये वाली सॉइल मिलती है, ठीक है। तो ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो पॉइंट्स में आंसर देंगे इस तरह से। अब देखो लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल देखने में कैसी लग रही है? जिसका लेटिन मीनिंग जो होता है लेटर, है ना, लेटर मीनिंग होता है। और अब सबसे बड़ी बात है कि लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है? जहाँ हैवी रेनफॉल है और हाई टेम्परेचर है, वहां पर आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर भी सेम जो है ब्लैक सॉइल जैसे फीचर है। जब इसमें आप पानी डाल देंगे तो कैसी हो जाएगी? क्लेई सी हो जाती है, ठीक है, एकदम इसको यूज नहीं किया जाता। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि कैसी है। और अगर इस ये सूख जाती है तो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। जैसे लेटिन वर्ड लेटर से बना है विच मीन्स ब्रिक, बिकम सो सॉफ्ट when wet and so hard when dried, फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ये आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट्स, अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? लीचिंग से होता है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल। अब लीचिंग क्या होता है बच्चों? लीचिंग अगर रेनफॉल ज्यादा होता है तो जो सॉइल की अपर जो लेयर होती है ना वो हट जाती है, उससे इसका फॉर्मेशन होता है। और अब आप समझ सकते हैं कि लेयर हट गई तो उसमें बचेगा क्या? तो उसके अंदर ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं, ह्यूमस हैं, ये सब की कमी हो जाती है। बैक्टीरिया जो है वो सब उससे पानी से बह जाते हैं, ठीक है। और इसलिए ज्यादा फर्टाइल नहीं होता, ह्यूमस कंटेंट लो होता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट करके लेटराइट सॉइल को यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल। लीचिंग समझ में आ गया कि जब भी लीचिंग का मतलब ये होता है, अगर हम देखें कि उस सॉइल का जो केमिकल जो होता है, जो इम्पोर्टेंट केमिकल पार्ट होता है, वो रेनफॉल की वजह से क्या होता है? बह जाता है। ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव फास्ट बाय द बैक्टीरिया। एक तो बैक्टीरिया एज इट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? उसका जो बैक्टीरिया जो होंगे वो भी उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। और जो ह्यूमस होगा वो क्या ले लेंगे? दिस इज द ह्यूमस विल बी टेकन बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, यानी वो खींच लेते हैं, यानी उस वो जो मिट्टी के अंदर प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो उसके ह्यूमस को जल्दी से लेते हैं। तो ये क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, इसमें ह्यूमस कंटेंट लो हो जाता है। रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, और कमी क्या है इसमें? डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, लाइम एंड ह्यूमस। कलर कैसा है? रेड। रेड क्यों है? ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। अब इसमें ग्रो क्या करता है? क्रॉप्स कौन सी होती है? राइस है, रागी है। रागी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, रागी में कैल्शियम, आयरन सारे जो हैं बहुत कंपोनेंट होते हैं। इट्स वी कैन से वेरी हेल्दी फॉर अ पर्सन, बहुत हेल्दी होता है ये। और ये रागी स्पेशली आते ही ध्यान रख लेना साउथ में होता है। रागी जो है हमारे नॉर्थ में अब तो मिलता तो है, सब कुछ मिल जाता है, बट इसकी जो क्रॉप है रागी की वो स्पेशली साउथ में होती है। राइस, रागी, शुगर केन एंड कैश्यू नट्स आर कल्टिवेटेड मेनली। इट इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफी एंड कैश्यू नट्स। ये टी कॉफी अपने अब देख लें, कर्नाटका देख लें, है ना, और जो है आसाम की टी देख लें, कैश्यू नट साउथ में। इट इज फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। जैसे हमने क्रॉप्स पढ़ी वैसे ही हमको स्टेट्स याद हो गए इसके, कि हमने देखा रागी है, शुगर केन है। शुगर केन भी आपको मालूम होना चाहिए कि अब साउथ में इसकी इंडस्ट्रीज होने लगी है। तो इन चीजों को रिलेट करके पढ़े, रटना नहीं है हम चीजों को रिलेट करना है। कि देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी की सॉइल पता है ना तो आपको वहां का रेनफॉल पता चल जाएगा। अगर रेनफॉल पता है ना तो आपको वहां की क्रॉप्स पता चल जाएगी। ये इस चीज को इस तरह से समझा जाता है। तो हमने देखा कि क्रॉप्स कौन सी हैं, तो हमें पता होना चाहिए सॉइल कौन सी है। अगर सॉइल है तो ये एरियाज कौन से हो सकते हैं, वहां की रेनफॉल कैसे। चार चीजें कोरिलेट होती हैं एक दूसरे से। इट इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफी एंड कैश्यू नट।
It is found in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Odisha and Assam. तो लेटराइट सॉइल आ जाता है। और आपके क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका क्वेश्चन, या तो पर्टिकुलर आपका सॉइल के ऊपर आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस सॉइल, या फिर मैप के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके कि ये मार्क द माउंटेनस सॉइल, और रेगर सॉइल के नाम से आ सकता है कि रेगर सॉइल मार्क करें। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकता है। एरिड सॉइल, ऐसा लग रहा है ना हमारा ये एरिया कहीं है, देखने में लग रहा है ना एरिड सॉइल, एकदम ड्राई ड्राई है ना, जहां पर और बहुत लेस वेजिटेशन देखने को मिल रही है। सैंडी सॉइल है, ड्राई है, कम बारिश है, थॉर्नी बुशेस हैं, रूट्स जो हैं बहुत अंदर तक होते हैं, वेजिटेशन वाटर स्कैर्सिटी है। दीज आर द फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉम्पोजिशन कम है। सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस, डिपॉजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज। आपने सुना होगा सैंड ड्यूज वगैरह, ये मिट्टी कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जो है दी सैंडल्स आर शिफ्टेड विद द ब्लो ऑफ विंड। हाई सॉल्ट कंटेंट होता है इसके अंदर, जो क्योंकि आपको मालूम है इसका रीजन क्या है, हाई सॉल्ट कंटेंट क्यों है। यहाँ राजस्थान में स्पेशली हम बात करेंगे कि जो नदियां हैं, जो हमारे यहाँ जो रिवर्स हैं, वो स्पेशली सॉल्ट कंटेंट है। और फिर ये जो रिवर्स अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है उनमें भी क्या होता है, सॉल्ट होता है। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस होता है। कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई। इसमें क्या रहता है, कंकर, इम्प्योर कैल्शियम, विच रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। पानी को फिल्टर होके जो है जाने नहीं देता, रोक लेता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता, वाटर का पहुंच नहीं पाता वो पानी। टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी, कलर आपको रेडी टू ब्राउन मिलेगा, और स्पेशली इट इज फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। So everybody, because we live in Rajasthan, we also see the desert also. तो बट whenever you take some we can say that कि मिट्टी को हाथ में लेंगे तो वो इस तरह से करेंगे तो मिट्टी क्या हाथ से छूट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से सैंडी होती है, रेड टू ब्राउन कलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट सॉइल है। अगर मैं फॉरेस्ट सॉइल के साथ माउंटेन सॉइल लगा देती, देखो फॉरेस्ट तो कहीं भी हो सकता है ना। अब इस फॉरेस्ट सॉइल के साथ हम यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, क्योंकि स्पेशली आपके जो टॉपिक कवर करेगा वो माउंटेन सॉइल का करेगा। माउंटेन्स एरिया के अंदर जो सॉइल पाई जाती है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये जो है आपको पता है कि यहाँ सभी तरह के सारे क्रॉप्स नहीं होते। फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरिया वेयर सफिशिएंट रेनफॉल। अब आपने अमेजोन के फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, कोंगो बेसिन के बारे में सुना होगा, जहाँ पर क्या होता है, बारिश तेज होती है, यानी हम मान सकते हैं 200 अबाउट 200 टू 400। और यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट ही मिलते हैं। जो फॉरेस्ट एरियाज की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट ही मिलते हैं बिकॉज ऑफ रेनफॉल। यहाँ की सॉइल क्या होती है, बारिश ज्यादा है तो सॉइल इज वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। एनवायरमेंट कैसा है, रिवर वैलीज है, डीप वैलीज में, बहुत अपर उसके ऊपर जो है सरफेस के ऊपर है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो type of soil is also depends of the we can say in the height and altitude of the mountainous area. The environment they are formed, and we can say they are loomy and silty on valley sides. अब आपको पता है कि सॉइल का जो माउंटेनस सॉइल है उसका भी टाइप है। वैली साइड्स जो होता है वहां पर कैसे मिलेगी, लूमी एंड सिल्टी, और कॉरस ग्रेन्ड इन द अपर स्लेब। देखो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझे। सिल्टी लूमी क्या होता है, जब उसमें वाटर जो टेक्सचर होता है वो ज्यादा होता है वैली साइड्स में। और कॉरस ग्रेन क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, कई बार मिट्टी के अंदर आप थोड़े थोड़े से कंकड़ जैसे देखते हैं ना, वो अपर स्लोप में मिलते हैं। लोअर स्लोप हमेशा प्लेन्स उसमें आता है। इन द स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालयाज। अब स्नो बाउंड एरियाज क्या है, हम कह सकते हैं जो ग्रेटर हिमालयाज है वो स्नो बाउंड एरियाज है। दे एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन क्या होता है, कटता रहता है, वो कटती रहती है मिट्टी जो है वहां पर। आपको पता है कितने सारे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं, तेज बारिश है, तेज रेनफॉल है ना। इस वजह से वो जो है सॉइल जो है वहां से क्या होता है, उसका डेन्यूडेशन होता है और वो एसिडिक हो जाती है विद लो ह्यूमस कंटेंट। द सॉइल फाउंड इन लोअर वैलीज आर, और लेकिन लोअर वैलीज ये माउंटेन्स में कैसी है, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा लद्दाख रीजन जो है ना, ग्रेटर हिमालय जो रीजन है, काराकोरम रेंज वगैरह, वहां पर क्या है कि यहाँ जो है
या कुछ भी, आपको कुछ भी यूं कह सकते हैं कि वेजिटेशन है, मॉसेस एंड लीचेंस है, जबकि लोअर वैलीज क्या है, इट इज दीज आर फर्टाइल टाइप्स ऑफ, यू कैन सी व्हेनेवर यू गो इन हिल स्टेशन आपने देखोगे एप्पल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पर आपको सब तरह की वेजिटेशन मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो सारा टाइप्स ऑफ सॉइल पर डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट है अपना सॉइल इरोजन है। अब सॉइल इरोजन कैसे होता है, आप लोग हम लोग घूमने जाते हैं तो कई बार आप लोग देखते होंगे कि ऐसा सीन देखने को मिल जाता है, ऐसे बीच बीच में से टुकड़े उड़े हुए होते हैं, है ना। कई बार मिट्टी बहुत सारी खट्टी दिखती है आपको, कई बार कम दिखती है, तो उसका रीजन क्या है। तो सॉइल इरोजन अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछे तो जनरल अगर क्लास में होता तो हम जनरली सभी बच्चों से पूछते, तो वो हैवी रेनफॉल है, लेस वेजिटेशन है, ह्यूमन फैक्टर्स है, इंटरवेंशन है, वो बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन, तो जो टॉप सॉइल होती है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड। नेचुरल एजेंसीज क्या है, हैवी रेनफॉल हो गया, तेज बारिश, तेज हवा, ये जो ऊपर के सरफेस को ले जाती है वो। इट इज कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड। फिर इसके अलावा और क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग है, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल सॉइल इरोजन। अब जो वाटर की वजह से सॉइल इरोजन होता है, दिस इज टू टाइप्स ऑफ इरोजन, गली इरोजन एंड शीट इरोजन। बच्चों गली इरोजन क्या होता है, यू सी द पिक्चर हियर, पहले पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा गली इरोजन क्या होता है। देखो तेज बारिश होती है, बहुत तेज जब बारिश होती है तो ये क्या करती है, इसको जो एरिया होता है, जो लैंड होता है, उसको बीच में से काट देती है। ठीक है, अब बीच में से कटने से क्या होता है, बिल्कुल आप खाई जैसा ये देखने को मिल जाएगा, बहुत गहरा हो जाता है ये। तो ये लैंड क्या हो गई, इसमें अनफर्टाइल हो गई, क्योंकि ये वाला एरिया तो खराब हो गया। और अगर आप राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं आपको राजस्थान का इसलिए एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मोस्टली हम लोग इन एरियाज में जाते हैं। चंबल रिवर के बारे में सुना होगा, अगर जीके का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ये आता है कि बैडलैंड टोपोग्राफी कौन सी रिवर बनाती है, तो बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है चंबल रिवर। वो इस तरह का गिली इरोजन कर देती है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो एरिया जो है, लैंड जो है, डिसेक्टेड हो जाती है। तो हम देख लेते हैं गिली इरोजन क्या है। द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड स्कूप्स, मतलब अनइवन है, एरिया भी अनइवन है, अवे द सॉइल, वहां से वो सॉइल को हटा देती है, एंड फॉर्म डीप चैनल्स कॉल्ड गली। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड द गली इरोजन। ठीक है, a land which is broken into many small parts। अब उस लैंड को क्या करेगी, गली इरोजन हो गया तो लैंड को क्या किया, स्मॉल पार्ट्स में हो गया, इसलिए उसे क्या कहते हैं, बैड लैंड। बैड लैंड क्यों है, गुड लैंड क्यों नहीं है, क्योंकि लैंड को तोड़ दिया। A bad land is unfit for cultivation and for not for other economic activities, very simple। तो इस वजह से अगर बैडलैंड टोपोग्राफी का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको अभी बताया। अब बच्चों शीट इरोजन और देखेंगे, है ना। शीट इरोजन क्या होता है बच्चों, शीट इरोजन देखो, आप देखो इस पिक्चर्स में देखने पे ही समझ में आ जाएगा। यानी पानी जा रहा है सरफेस से, और पानी की गति इतनी तेज है, स्पीड इतनी तेज है कि जो सरफेस की मिट्टी है वो भी अपने साथ, ये आप बहुत नॉर्मली आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो जो मिट्टी अपने साथ ले जा रही है, तो इससे शीट इरोजन, यानी जो मिट्टी की शीट थी वो अपने साथ ही ले गई, तो ये शीट इरोजन हो गया। समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, है ना। जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, द वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल, दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड अ शीट इरोजन। ये भी आपको बहुत नॉर्मली देखने को मिल जाएगा कि पानी जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी स्पीड क्या तेज है, तो उसके साथ क्या होता है, एक टॉप सॉइल जो होती है वो अपने साथ रिमूव कर लेता है। दैट्स व्हाई this types of phenomena we can see, then this type of erosion is called a sheet erosion। अब हमने ये सारे इसके अलावा भी पता है सॉइल इरोजन के बहुत सारे डिटेल में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही करना है जितना आपका कोर्स में। तो अगर हम बात करें कि सॉइल अब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो सॉइल के हम सोल्यूशन देखें तो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो कंजर्वेशन मेजर्स क्या है। उसके लिए हमें देखना होगा कि वो तरीके क्या अपनाए, व्हाट स्टेप्स शुड बी अडॉप्टेड टू अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। some types of steps are we can say contour plowing, see the picture here, contour। contour किसको कहते हैं, सबसे पहले आप समझे इस चीज को। contour क्या होता है कि जब हम फार्मिंग करते हैं उसकी जो एज लाइन होती है ना, जो सरफेस की एज लाइन होती है वो contour कहलाता है। ये देखो ये वाली जो चीज है ना, मैं जहाँ पर मार्क कर रही हूँ, ये जो एरिया है, these are called the these are called the contour। तो यहाँ यहाँ फ्लोइंग की जा रही है इस सरफेस एरिया में, तो उससे क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा। तो जब वाटर का फ्लो होगा, समझ लीजिए पानी इस कोने से आ रहा है,
तो ये जो कॉन्ट्योर्स बने होंगे, तो पानी की जब भी पानी के अंदर वाटर के अंदर ऑब्स्टेकल्स क्या काम करते हैं, तो वाटर की स्पीड को क्या करेंगे, स्लोप्स के जब फ्लो करेगा तो ये स्लोप्स के थ्रू वाटर की स्पीड को कम कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्योर लाइंस। ये लाइंस है, इसी कॉन्ट्योर लाइंस कहते हैं ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस हिली एरियाज में आपको दिखेगा, ये तो सीन आपने देखा ही होगा जरूर, जब आप लोग जाते हैं तो घूमने जाते हैं तो ये एरियाज आपको देखेंगे, उसमें टेरेसेस। देखो टेरेस फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हाई सरफेस होता है, ऊपर की तरफ सरफेस होता है, लेकिन वो सरफेस कैसा होता होगा, स्मूथ। तो उसके अंदर टेरेस स्ट्रिप्स को काट कर यहाँ पर इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और यहाँ भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो उसको यहाँ पर जो है इन टेरेसेस के ऊपर कल्टीवेशन किया जाता है। Steps can be cut on the slopes, making terrace cultivation restrict soil erosion. अब ये क्या है, सॉइल जो है हमने देखा ना, सरफेस का शीट इरोजन देखा, गली इरोजन देखा, अब इसके अंदर तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसका रीजन है कि ये स्टेप्स जो है वो इरोजन को रोकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप देख रहे हैं आप, ये होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये वाली। ये बीच बीच में इसके क्या है, लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। अब इनको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस, अब इसके अंदर बीच में क्या है, ये ग्रासेस लगा दिए, ये वाली, ये ग्रासेस लगा दी है बिटवीन द क्रॉप्स, बीच में क्रॉप्स उग रही हैं। ठीक है, ये देखिए बीच का हिस्सा यहाँ पर क्या है, क्रॉप्स है, ये साइड्स में क्या लगा दिया इन्होंने, ग्रासेस लगा दिए हैं। ठीक है, तो दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। अब आप मुझे बताइए, हवा यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है, तो अब ये ग्रासेस उस हवा की स्पीड को क्या करेगी, देखो कोई भी चीज ऑब्स्टेकल का काम कर रही है, चाहे वाटर के स्पीड को कम करना हो, चाहे हवा के स्पीड को कम करना हो, विंड की स्पीड को, तो उस विंड की स्पीड को कौन रोक रहा है, ये ग्रास। दिस मेथड इज कॉल्ड द स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो ये क्रॉपिंग का मेथड क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, जो कि अब शेल्टर बेल्ट तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, शेल्टर बेल्ट का देख लीजिए आप, ये लाइन में जो एक ही तरह के जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ शेल्टर बेल्ट। अब दी शेल्टर बेल्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द वेजिटेशन, सॉइल इरोजन, लैंड ऑल्सो, क्योंकि ये क्या है, जब एक साथ है तो इनमें क्या है, इनका फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो यानी अगर विंड पीछे से आ रही है या आगे से, तो ये इनको विंड को क्या करेगी, उस स्पीड को ऑब्स्टेकल का काम करके रोकेगी, आगे आने नहीं देगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो शेल्टर बेल्ट है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री, ये जो शेल्टर बेल्ट है इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट, जो कि विंड की स्पीड को, वाटर की स्पीड को, सॉइल को, देखो जो ये एक तो ये वैसे भी रोकता है, और दूसरा जब पेड़ होते हैं वो अपने अंदर क्या मजबूती बना के रखते हैं, एकदम उसकी पकड़ बना के रखते हैं, इसकी मिट्टी की, विंड सॉइल की जो हम कहते हैं ग्रैब है ना, वो पूरी तरह से उसको कौन करके रखता है, उससे भी इरोजन कम होगा। प्लांट्स के अंदर अगर हम गमले में से एक प्लांट को उखाड़ते हैं तो हमें कितना ज्यादा दम लगाना, फोर्स लगाना पड़ता है, उसका रीजन क्या होता है कि वो मिट्टी जो होती है उसको जड़ों तक पकड़ के रहती है, और इस वजह से इस तरह से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो ओवरऑल हमने जो है सारा आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम, सारा हमने क्या किया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस क्या है, ठीक है, रिसोर्सेस किसे कहते हैं। उसके बाद हमने कहा था, इसको हमने क्लासिफिकेशन किया था रिसोर्सेस का, रिसोर्सेस नेचुरल ह्यूमन किया था, ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर नेचुरल को रिन्यू